حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت سارے اعزازات نمایاں ملے ہیں۔ سب سے پہلا اعزاز یہ ہے کہ 8-10 سال کی عمر میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو بچوں میں سب سے پہلے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اسلام کی دعوت کو پیش کیا تو اللہ کے نبی کی دعوت پر حضرت علی شیر خدا جو 8 یا 10 سال کی عمر میں تھے، بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے میں سبقت کر کے اسلام میں داخل ہوئے۔ عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجۃ الکبریٰ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پہلی بیوی ہے اور امہات المؤمنین ہے، جب اللہ کے نبی غار حرا سے آئے اور قرآن سنایا، بیان کیا، حالات و واقعات بتلائے تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے عورتوں میں ایمان لایا۔ یہ اعزاز حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو ہے۔ اور دوسری عورتوں میں جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی رضاعی ماں ہے، جس نے دودھ پلایا، ام ایمن سب سے پہلے اس نے ایمان لایا۔ غلاموں میں سب سے پہلے زید بن حارثہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، انہوں نے ایمان لایا۔ اور مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جب اللہ کے نبی نے ان کو اسلام پیش کیا تو سب سے پہلے انہوں نے اسلام لایا۔ اور بچوں میں یہ اعزاز حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہے کہ ان کے سامنے جب اللہ کے نبی نے اللہ کے دین کو، تبلیغ کو پیش کیا تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے والد محترم سے پوچھوں گا۔ جب پوچھا تو انہوں نے کہا بیٹا تیری مرضی ہے، مانو تو مانو، نہ مانو تو تیری مرضی۔ فرماتے ہیں سموار کے دن اللہ کے نبی نے ان پر تبلیغ کو پیش کیا، رات کو یہ سوئے تو اللہ کے نبی کی باتیں سامنے آ رہی تھی، اللہ کے نبی کی وہ شفاف زندگی بھی سامنے تھی جو 40 سالہ دور نبوت سے پہلے گزری۔ ہر حالت کو سوچتے گئے، ان پہ حقیقت کھلتی گئی۔ صبح ہوئی تو منگل کے دن اللہ کے نبی کے دربار پہ آئے، سامنے آئے، حاضری دی اور کلمہ شہادت پڑھ کر بگوش اسلام ہوئے۔ یہ اعزاز سب سے پہلے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہوا۔ دوسرا اعزاز کہ اللہ کے نبی کے گھر میں ان کی پرورش ہوئی، کسی کے حصے میں نہیں آئی۔ اللہ کے نبی نے انہیں 5-6 سال کی عمر میں تھے، کزن تھے، چچا زاد بھائی تھے، تو اللہ کے نبی کے ساتھ رہ رہے تھے۔ اللہ کے نبی نے ان کی پرورش کی۔ پرورش کہاں تک کی؟ جب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح میں دی وہاں بھی بس نہ کیا، بلکہ جب تک اللہ کے نبی زندہ رہے اس وقت تک علی و فاطمہ، حسن و حسین کی تربیت فرماتے رہے۔ یہ نمایاں اعزاز بھی صرف حضرت علی کو ملا۔ اور تیسرا اعزاز کیا ملا؟ جب اللہ کے نبی مکہ سے ہجرت کر کے مدینے جانے لگے تو اللہ کے نبی کے پاس دشمنوں کی کچھ امانتیں تھی۔ دیکھو میرے نبی کیسے صادق و امین تھے، دشمنوں نے مانا تو نہیں لیکن امانتیں رسول اللہ کے پاس رکھتے تھے کہ ان جیسا امین اور سچا کائنات میں نہیں ہے۔ جب ہجرت پہ جانے لگے تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور فرمایا میرے بھائی یہ کچھ مکے کی سرداروں کی امانتیں ہیں، یہاں میرے چارپائی پہ سو جا یا میری چادر لے لے اور صبح کو ہر بندے کو اس کی امانت اس کے حوالے کرنا یہ تیرے ذمہ ہے۔ تو دیکھو اللہ کے نبی کو حضرت علی پہ اعتماد کتنا بڑا تھا کہ مکے کی امانت حضرت علی کے سپرد کر دی۔ یہ اعزاز بھی حضرت علی کو حاصل ہے۔ لیکن یہاں میں ایک بات کی وضاحت ضروری سمجھتا ہوں کہ اموال، مال و متاع جو مکے کے لوگوں کی امانت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس تھی، وہ حضرت علی پر اعتماد کر کے اس کے حوالے کی۔ خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک اللہ کی امانت تھی اور اللہ کی وہ امانت انہوں نے ابو بکر صدیق کے حوالے کر۔
उन पे अलग एतमाद फरमाया, इन पे अलग एतमाद फरमाया। ये भी हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक एजाज़ था। और जब हिजरत करके मदीना चले गए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने वहाँ मदीने वालों में, मुहाजिरीन और अंसार में मुवाख़ात कायम की, भाईचारा कायम किया। तकरीबन 53 मुहाजिर जो यहाँ से गए थे 53 अंसार के साथ जोड़ दिया, ये तेरा भाई, ये तेरा भाई, ये तेरा भाई। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अकेले रह गए, उनके हिस्से में कोई नहीं आया। तो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मक्के को सोचने लगे कि मैं वहां भी अकेला था, अब परेशान है, आंखों में आंसू हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर पड़ी तो फरमाया, अली गमज़दा लग रहे हो, क्या हुआ, क्यों परेशान हो? तो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ए मेरे नबी, मैं मक्के में अकेला था आपके यहाँ, वहाँ से हिजरत करके आया तो यहाँ आपने एक मुहाजिर और एक अंसार की भाईचारे को कायम किया, मेरे हिस्से में कोई नहीं आया, मैं फिर अकेला रह गया। तो मेरे नबी ने सीने से लगाया और फरमाया, अली अंत अखी फिद दुनिया वल आखिरा, ए अली तू क्यों परेशान है, और तुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह का भाईचारा मुबारक हो, तो दुनिया में भी मैं मोहम्मद का भाई, आखिरत में भी मेरा भाई होगा। ये एजाज भी हजरत अली शेर खुदा को हासिल है। कितने एजाजात हुए? सबसे पहले बच्चों में इस्लाम लाने वाले, दूसरा एजाज नबूवत में परवरिश की, तीसरा एजाज मक्के की अमानत रसूलुल्लाह ने उन पे एतबार करके उनके हवाले किए, चौथा एजाज जब हिजरत करके आए तो अल्लाह के नबी का भाईचारा हजरत अली को मिला, पांचवा एजाज हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदीने में जब बड़े हुए तो अल्लाह के नबी का जो ये कुर्ब हजरत अली के साथ था, ये जो ताल्लुक था, ये जो रिश्ता था, इसको और करीब करके हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हजरत अली के निकाह में देकर उसको दामाद रसूल भी बना दिया। ये एजाज भी हजरत अली के हिस्से में आया। और सबसे बढ़कर जो एजाज हजरत अली को मिला वो ये है कि हजरत अली के घर में फातिमा तो ज़हरा आई तो यूं हजरत अली जब अल्लाह के नबी मेराज पे गए, वापस आए तो हजरत अली का हाथ पकड़ा और फरमाया, अली तुझे मुबारक हो, मैं जन्नत में तेरा घर देख के आया हूँ, तेरा घर मेरे घर के सामने होगा। तो हजरत अली रोने लगे, फरमाया, या रसूल अल्लाह, मैं राजी हूं, अब मेरा घर पूरा हुआ। जिसका घर रसूलुल्लाह जन्नत में देख के आए, फिर देखो कि जिसकी नौकरी जन्नत करे, कैसे नौकरी कर रहा है, मैं दलील देने लगा हूं। जन्नत जिसकी नौकरी करे वो अली का घराना है। जन्नत के नौजवानों के सरदार अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, हजरत अली के दो बेटे जन्नत के नौजवानों के सरदार है। और फरमाया, फातिमा तो सैयदतु निसाई अहलिल जन्ना, और हजरत अली की बिस्तर की इज्जत, हजरत अली की बीवी, हजरत अली की जिंदगी फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जन्नत की औरतों की सरदार है। यानी जन्नत में उनकी सरदारियां चलेगी, सरदार के नीचे सारे नौकर होंगे। ये एजाज भी हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हासिल है। और इससे बढ़कर 27 गज़वात मेरे नबी ने लड़े हैं। 27 गज़वात में एक जंगे तबूक के अलावा 26 गज़वात में अल्लाह के नबी के हम रिकाब रहे, शाना बशाना रहे, साथ रहे। वाहिद शख्सियत हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की है कि जिनको ये फजीलत हासिल है। खंदक का मौका है, मुसलमानों ने खंदक के खुदवाई। हजरत सलमान फारसी अल्लाह के नबी ने खंदक के मौके पे खड़े होके मुसलमान अपने सहाबा से मशवरा लिया तो हजरत सलमान फारसी ने मशवरा दिया कि या रसूलल्लाह खंदकें खोदी जाए। तो खंदकें बड़ी गहरी और बड़ी छेड़ी खोदी गई। जब मक्के के मुनाफिक पहुंचे तो किसी की हिम्मत ना हुई कि घोड़ा दौड़ा के पार कर सके। उस तरफ मुसलमानों का लश्कर और इस तरफ कुफार का लश्कर। उनमें एक जंगजू आमर बिन आबद वद जो 100 जंगे लड़ चुका था,
बड़ा ही तजर्बा कार था। उसने दौड़ा, दूर से घोड़ा दौड़ा दौड़ा के खंदक को पार कर दिया और ललकारने लगा, हल में मुबारिज, अरे है कोई जो मेरे मुकाबले में आए? कोई ना उठा। जब सबकी नजर पड़ी ये आमर बिन आबद वद है, इसका मुकाबला कौन करे? तो हजरत अली की उम्र सिर्फ 21 साल है, सिर्फ 21 साल उम्र है। उठे, या रसूल अल्लाह, अना लहू, मैं इसके मुकाबले के लिए हाजिर हूँ। मेरे नबी ने यूं देखा, फरमाया, अली तुम्हें पता है वो आमर बिन आबद वद है, बैठ जा। अल्लाह के नबी ने बैठा दिया। दूसरी बार उसने पुकारा, फिर कोई ना उठा। फिर हजरत अली शेर खुदा उठे, अना लहू, मैं इसके मुकाबले में जाता हूँ। मेरे नबी ने फरमाया, बैठ जा, तुम्हें पता नहीं ये आमर है, आमर। फिर बैठे। तीसरी बार जब उसने पुकारा और बड़ी तौहीन आमेज अल्फाज इस्तेमाल कर गए, अरे कहाँ गई तुम्हारी जन्नत का शौक? तुम कह रहे हो जो शहीद होगा वो जन्नत में जाएगा, क्या तुम में जन्नत का तलबगार कोई नहीं है जो मेरे मुकाबले में आए? अब जो शान से उठे हजरत अली, मेरे नबी ने देखा, फरमाया, अली ये आमर है, आमर। तो मेरे नबी की बात सुन के हजरत अली ने फरमाया, व इन खान आमरन, ए मेरे हबीब, अगर चाहिए आमर है, इजाजत हो, अब मैं नहीं बैठूंगा। तो हजरत अली को मेरे रसूल ने अपनी तलवार पकड़ाई, जाने लगे। फरमाया, अली रुक जा। सर से पगड़ी उतार के उसके सर पे रख दी। फिर फरमाया, जा, और पीछे हाथ उठा दिए। ए मेरे रब, मैं अपने बेटे को, अपने भाई को, अपने कजन को, अपने दामाद को तेरे बड़े दलेर दुश्मन के मुकाबले में बेचता हूँ। तलवार तेरी नबी की है, हाथ अली का है, पगड़ी तेरी नबी की है, सर अली का है। मेरे रब, तुझे अपने नबी की पगड़ी और तलवार की लाज रखनी होगी। करीब गया तो यूं मुंह पे निकाब था, तो वो लाइन कहने लगा, कौन है तू? तो इसने कहा, अना अली। तो उसने कहा, अली बिन अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब का बेटा? फरमाया, नहीं, अली बिन अबी तालिब, मैं अबू तालिब का बेटा अली हूं। तो अमर बिन अब्द वद कहने लगा, अरे भतीजे, तू कल का बच्चा मेरे मुकाबले में, मैं तुझे मारना नहीं चाहता। वो कमबख्त बड़ा मुतमईन था कि मैं तो एक बार में से खत्म कर दूंगा। कहने लगा, मैं तुझे मारना नहीं चाहता, जा अपने मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कह दो कि कोई और है जो मेरे मुकाबले में आए। तो हजरत अली ने पुकारा, अरे तू तो मुझे मारना नहीं चाहता, पर मैं तो तुझे मुर्दार करना चाहता हूँ। ये सुनना था। उसे गुस्सा आया तो उसने जो छलांग लगाई और वार की। हजरत अली ने ढाल से रोका, ढाल को काटता हजरत अली शेर खुदा के कंधे पे आके लगा, जख्मी हुआ। और जख्मी शेर पलट पलट के हमला करता है। हजरत अली जाते हुए शेर पढ़ते थे, मैं वो हूँ जिसका नाम उसकी माँ ने हैदर कर्रार रखा है। हैदर शेर को कहते हैं, कर्रार पलट पलट के हमला करने वाला शेर। और जख्मी शेर तो फिर क्या बात है। तो हजरत अली जब जख्मी हुए, जब पलट के हमला किया, उसने ढाल आगे करके रोका, लेकिन वो वार ही ऐसा था कि हजरत अली के वार ने उसके ढाल को थोड़ा और यूं जो आके लगा तो जिस्म को दो टुकड़ों में चीर के जमीन पे ढेर कर दिया। हजरत अली ने उसकी लाश पे पैर रख के कहा, ये है बुतों का पुजारी और ये है मोहम्मद रसूलुल्लाह के रब का पुजारी। अल्लाह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुलाम को फतह दे दी है।